बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, ऑनलाइन क्लास में मज़ा आता है ना। ऑनलाइन क्लास में हम कई सारी नई चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ? करेक्ट, मैं आपकी टीचर हूँ। मेरा नाम है मनीषा। देख लेते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। वेयर, व्हेन एंड हाउ। प्रील्यूड, highlights of the chapter. Modern period of history, the sources of modern period of history, the role of the British in the study of modern India, differentiate between various sources that help to study modern India, prominent features of colonial India, significance of the local sources of history. Sneak peek. Periodization of Indian history, British historians, Hindu, Muslim और British, modern Indian colonial rule, इसमें आता है पोर्तुगीज, डच एंड फ्रेंच। फिर ब्रिटिश रूल, इसके अंदर आता है सोर्सेज टू स्टडी कॉलोनियल रूल, जिसके अंदर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, सर्वे रिपोर्ट्स, इंडिजीनियस रिकॉर्ड्स, अदर सोर्सेज, और इसके अंदर है हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, अदर वर्क्स ऑफ आर्ट, मिसलेनियस सोर्सेज। और फिर आता है इंडियन हिस्टोरियंस, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। Periodization of Indian history. When the European ships first arrived on the shores of the Indian subcontinent, the Mughal Empire ruled over the vast region. The heart of the Mughal Empire was in the densely populated Ganges river basin. Initially, the Mughal rulers did not feel threatened by the Europeans dominating the seas. बच्चों, जब यूरोपियन शिप पहली बार अराइव किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के किनारे पर, तो मुगल एम्पायर रूल करते थे इस वास्ट रीजन पर। जो मुगल एम्पायर का हार्ट माना जाता था वो डेंसली पॉपुलेटेड था गंगा रिवर बेसिन का। इनिशियली जो मुगल्स थे वो कभी भी ये फील नहीं करते थे, उन्हें कभी भी डर नहीं लगता था यूरोपियन डोमिनेटिंग से। दे वर प्लीज्ड विद द मनी कमिंग इन फ्रॉम ट्रेड, वो काफ़ी खुश होते थे कि ट्रेड से उनको जो भी पैसा आ रहा है। द यूरोपियन ट्रेडर्स नीडेड टू मेंटेन अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द रूलर्स इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश प्रॉफिटेबल ट्रेड इन द रीजन। और वहीं जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे उन्हें ये ज़रूरी थी कि वो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रख सके रूलर्स के साथ में, यानी कि जो मुगल एम्पायर रूलर्स थे उनके साथ में, ताकि वो उनको इस रीजन से काफ़ी प्रॉफिट मिल सके। However, the Mughal Empire began to decline in the early years of the 18th century, just as the East India Company began to increase its presence. In the remote past, historians give importance to events related to the elite or the loyal class, like events related to king's life or the actions done by him, etc. After the First World War, as empire started collapsing, historians began to give more attention to the changes that have occurred over a period of time in ordinary people's lives, सोसाइटी एंड कल्चर। बच्चों, पहले जो वर्ल्ड वॉर हुआ था, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, तो एम्पायर्स ने कोलैप्स करना स्टार्ट कर दिया था। हिस्टोरियंस ने ज़्यादा अटेंशन देना शुरू कर दिया था चैलेंजेस में के जो आने वाले थे पीरियड ऑफ टाइम में, जो लोगों की लाइफ में फिर चाहे वो सोसाइटी और कल्चर में आए। The shifted focus of historians that has made the study of history more subjective and elaborate. This is reflected in the changed pattern of study of time in history. Historians prefer to state the time period rather than mentioning specific dates. बच्चों, historians ने उस टाइम पीरियड को स्पेसिफाई करना शुरू कर दिया और डेट को ज़्यादा मेंशन नहीं करते थे। Each time period has its own characteristics reflecting the society prevalent at that time and its different aspects. ज़्यादातर जितने भी periods थे उनके जो characteristics थे वो reflect करना शुरू कर दिया society के prevalent पर और different aspects पर। Time periods of Indian history. James Mill, a Scottish economist and political philosopher, has supported the British system of division of Indian history in his book, A History of British India. The book says that before the British came of India, Hindu and Muslim despots ruled the country and religious intolerance dominated social life in India.
However, the system of division of Indian history as Hindu, Muslim or British was not accepted by Indian historians, as it suggested that India was a theocratic state which discouraged the religious practices of the people. बच्चों, जेम्स मिल जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, पॉलिटिकल एक फिलोसोफर थे जो कि सपोर्ट करते थे ब्रिटिश सिस्टम को, इंडियन हिस्ट्री के अपने एक जो बुक है जिसका नाम था अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इस बुक में कहा गया था कि ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में हिंदू और मुस्लिम जो है वो इस कंट्री पर रूल करते थे। उनका जो रिलीजियस इंटॉलरेंस था वो डोमिनेटेड था सोशल लाइफ इंडिया में। बच्चों, जो सिस्टम था डिवीजन का इंडियन हिस्ट्री में हिंदू और मुस्लिम के बीच में, वो ब्रिटिश को एक्सेप्टेड नहीं था इंडियन हिस्टोरियंस के हिसाब से। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि इंडिया को एक थ्योरेटिक स्टेट बनाया जाए, डिस्करेज किया जाए रिलीजियस प्रैक्टिस को पीपल के। इट ऑल्सो इग्नोर्स द फैक्ट दैट मैनी इंडियन रूलर्स बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स एंड रिवर्ड डिफरेंट फेथ्स। बच्चों, यहाँ पर इग्नोर किया जाने लगा कि जो इंडियन रूलर्स थे उनके डिफरेंट रीजन्स को, उनके फेथ्स को। फॉर एग्जाम्पल, अशोका, अ रूलर ऑफ एंशिएंट इंडिया, was a Hindu and later adopted and spread Buddhism. अशोका जो था वो पहले एक हिंदू था, एंशिएंट टाइम में वो एक हिंदू था, लेकिन बाद में उसने स्प्रेड किया बुद्धिज्म को क्योंकि उसने बुद्धिज्म को अडैप्ट कर लिया था। अकबर, अ रूलर ऑफ मिडिएवल इंडिया, रिस्पेक्टेड हिज ओन रिलीजन इस्लाम एज वेल एज हिंदुइज्म। और वही बात की जाए अगर अकबर की, जो मिडिएवल इंडिया में था, जो एक रूरल था, उसने अपने रिलीजन को तो वो मानता ही था, इसके साथ साथ वो हिंदुइज्म को भी मानता था। यानी अकबर का जो रिलीजन था वो इस्लाम था, लेकिन वो हिंदुइज्म में भी काफ़ी बिलीव करता था। जेम्स मिल इन हिज बुक ऑल्सो मेंशंस दैट द ब्रिटिश वाज द पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वेयर द ब्रिटिश केम टू सिविलाइज इंडिया। बच्चों, जेम्स मिल ने अपनी बुक में ये भी मेंशन किया है कि ब्रिटिश ने जब रूल करना स्टार्ट कर दिया था तो इंडियन हिस्ट्री का वही पीरियड था जहाँ पर इंडिया ने सिविलाइजेशन सीखा था, ब्रिटिश से सीखा था। This type of division of Indian history clearly ignores the rich cultural past and heritage of India. और इसी पीरियड में इंडिया का जो वास्ट कल्चर था, इंडिया का जो हेरिटेज था, वो खो दिया। Indian historians prefer to choose the terms ancient, medieval and modern for the division of Indian history. The three divisions show the change from one period to the next period. बच्चों, इंडियन हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को बताने के लिए 3 स्टेजेस का सहारा लिया, जिसमें एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न था। ये 3 डिविजन्स जो थे वो बताते थे, ये पीरियड्स थे हिस्ट्री का, इंडियन हिस्ट्री का। Modern era of Indian history. The modern period is called the contemporary period of history. It generally covers approximately 100 years behind the current year. बच्चों, मॉडर्न पीरियड जिसे कॉन्टेम्प्रेरी पीरियड भी कहा जाता था इंडिया के हिस्ट्री का, जिसमें 100 साल का जो हमारा करंट ईयर से 100 साल पीछे जो है उसे मॉडर्न हिस्ट्री माना जाता है। इट कवर्स ह्यूमन हिस्ट्री फ्रॉम द टाइम ऑफ द क्रिएशन ऑफ अ मोर ग्लोबल नेटवर्क एंड इमर्जेंस ऑफ न्यू सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। सोशलिज्म और जो डेमोक्रेसी था, ह्यूमन हिस्ट्री का उसे कवर किया गया था इस पीरियड में। मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री डिफर्स फ्रॉम इंडिया एंड यूरोप। द मॉडर्न पीरियड इज सेड टू बिगिन in Europe in the 16th century, but in India, the 16th century was part of medieval India, when Mughal emperors like Babur, Humayun and Akbar ruled India. These differences are due to the fact that the Western historians base the term modern on progress and development made in the field of science, democracy, liberty and region in the West. बच्चों, मॉडर्न पीरियड जो था वो बिल्कुल अलग था इंडिया और यूरोप का हिस्ट्री का। मॉडर्न पीरियड जो है वो शुरू हुआ था यूरोप में 16th सेंचुरी में, लेकिन इंडिया में 16th सेंचुरी का जो पार्ट था, मिडिएवल पार्ट था जो इंडिया में, जहाँ पर मुगल एम्पायर बाबर ने, हुमायूं और अकबर ने रूल किया था, उसे मिडिएवल कहा जाता था। The speed of progress and civilization was not the same everywhere in the world. In India, the modern period began in the 18th century after 1707, when the last great Mughal emperor Aurangzeb died. During the Mughal region, the European powers had also come to India, and India witnessed
a change in its society, culture and traditions. बच्चों, जो स्पीड था प्रोग्रेस का सिविलाइजेशन में वो सेम नहीं था इंडिया वर्ल्ड में हर जगह, सब जगह अलग अलग था। यानी अगर इंडिया की बात की जाए तो मॉडर्न पीरियड जो इंडिया में शुरू हुआ था वो 18th सेंचुरी के बाद में हुआ था, यानी 1707 के बाद में हुआ था, जब लास्ट जो ग्रेट मुगल एम्पायर औरंगजेब मर गए थे। उसके बाद में मुगल के बाद में यूरोपियन पावर आया इंडिया में और इंडिया ने विटनेस किया अपनी सोसाइटी में चेंज, फिर चाहे वो कल्चर चेंज हो, ट्रेडिशन चेंज हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, कॉलोनियल रूल। The region of the Mughals continued, but it became so weak that it was overpowered by new religion powers like the Marathas, the Sikhs, the Rohillas, the Pathans and the Rajputs. बच्चों, जो मुगल थे जब उन्होंने उनका जो रीजन था, उनका जो रूल था वो वीक पड़ने लगा और ओवरपावर किया गया न्यू रिलीजन पावर्स के साथ में, जिसमें मराठास थे, सिख्स थे और रोहिलियास थे, पठान्स थे और राजपूत थे। द म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द रिलीजन पावर्स एंड द रिच एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल्स अट्रैक्टेड यूरोप फॉरेन पावर्स लाइक द पोर्तुगीज, द डच, द इंग्लिश एंड द फ्रेंच टू कम टू इंडिया। बच्चों, जो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट था रिलीजन पावर के बीच में, रॉ मटेरियल्स के बीच में, जब इंडिया में डिस्प्यूट्स होने लगे थे तो यूरोपियन जो फॉरेनर्स थे उन्होंने इस पावर का इस्तेमाल किया, पोर्तुगीज ने, डच ने, इंग्लिश ने, फ्रेंच ने, इंडिया आने के लिए। द यूरोपियन कंट्रीज competed amongst each other to get monopoly over India trade and eventually many foreign countries were established in India. फॉरेन कंट्रीज के बीच में इस बात की लड़ाई होने लगी कि वो इंडिया में जाकर ट्रेड करना चाहते हैं और कई सारे फॉरेन कंट्रीज इसमें जीती भी और इंडिया में आकर उन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 18th century, the British successfully outlasted all other European powers and established their economic and political control over most part of India. This period in Indian history came to be called British India. बच्चों, 18th century के एंड में ब्रिटिश ने जब वो आए, यूरोपियन पावर ने स्टैब्लिश करना शुरू कर दिया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल को पूरे इंडिया में, और इसे ही इंडियन हिस्ट्री का ब्रिटिश इंडिया कहा जाने लगा था। The period of British history in India is also called the colonial India. It refers to India of the time when the British established their rule in the country by subjugating local nawabs and rajas. बच्चों, जब ब्रिटिश हिस्ट्री आया था उस पीरियड को इंडिया में कॉलोनियल इंडिया कहा जाने लगा था उस पीरियड को। This was a period when the British East India Company exploited Indian resources for their own benefit and benefit of their country, Great Britain. बच्चों, ये वही वक्त था जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में एक्सप्लॉइट किया जाने लगा। ब्रिटिश ने अपने फायदे के लिए यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित किया था। इंक्रीज्ड टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश, एब्सेंस ऑफ सब्सिडी टू इंडियन इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश हार्म्ड इंडियन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। द लॉस ऑफ patronage ruined the local craft and textile industries too. During this period, India also witnessed great influence of Western education and culture on the local culture of India. बच्चों, इस पीरियड में इंडिया ने काफ़ी ग्रेट इन्फ्लुएंस वेस्टर्न एजुकेशन में, कल्चर में और इंडिया के लोकल कल्चर में भी फील किया था, देखा था। रिसर्च जंक्शन, वी ऑफन रेफर समथिंग और समवन एज अ मॉडर्न, like Mr. Mohanty is a man of modern outlook. New Delhi is a modern city as compared to old Delhi. What is the meaning of word modern in day-to-day life? It is used in the same context in history. इसकी प्रैक्टिस बच्चों आप खुद से कीजिएगा, इसे ध्यान से पढ़िएगा। Knowledge junction, India's riches and its wealth in spices and minerals made it a target for invention and colonization by European powers from 15th century onwards. बच्चों, इंडिया रिच था, काफ़ी वेल्थी था अपने स्पाइसेस को लेकर, मिनरल्स को लेकर, और इसी को टारगेट करने के लिए यूरोपियन पावर्स ने यहाँ पर आना शुरू कर दिया था। ग्रास्प एंड गेन, द ब्रिटिश राज इज अ हिस्टोरिकल टर्म. राज इज अ वर्ड इन द हिंदी लैंग्वेज विच मीन्स रूल. सो ब्रिटिश राज means rule by British in India. This rule was before 1947 and was over parts of 4 countries, the Republic of India, Pakistan, Bangladesh and Myanmar. बच्चों, ब्रिटिश राज हिस्टोरिकल टर्म है ये। राज का मतलब हिंदी में कहा जाता है रूल, यानी ब्रिटिश का रूल इंडिया में 1947 से पहले तक रहा और जिसमें 4 कंट्रीज थे, जिसमें रिपब्लिक ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार आते हैं। सोर्सेज टू स्टडी द कॉलोनियल पीरियड. By the modern period of history, print technology had progressed
greatly. Also, paper was easily available and was cheap. Therefore, the study of modern history mainly relied on literary sources. बच्चों, मॉडर्न पीरियड की जो हिस्ट्री थी, प्रिंट टेक्नोलॉजी जो थी वो काफ़ी ग्रेट थी, पेपर जो था उसकी अवेलेबिलिटी भी काफ़ी चीप थी. The literary sources for British India include the administrative records, surveys, reports and ingenious records. Administrative records. The Mughals introduced the culture of recording everything. The British believed in writing every instructions, plan, policy decision and agreement and investigation. So all the information gained was documented. बच्चों, मुगल जो थे वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कल्चर को, रिकॉर्ड करने के कल्चर को, यानी वो हर एक चीज़ को रिटर्न में लिखते थे, रिटर्न में उसका रिकॉर्ड रखते थे. फिर चाहे वो प्लान हो, इंस्ट्रक्शन हो, पॉलिसी डिसीजन हो, अग्रीमेंट हो, ताकि उससे इंफॉर्मेशन, उस डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन मिल सके, गेन किया जा सके. Through memos, notings and reports, every instructions, plan, policy decision, agreement or investigation was clearly written and recorded. To store documents, record rooms were made. They were attached to all administrative institutions. बच्चों, memos, notings और reports या कोई भी इंस्ट्रक्शन होता था, प्लान होता था, पॉलिसी डिसीजन होता था, अग्रीमेंट होता था, इन्वेस्टिगेशन होता था, वो क्लियरली लिखा जाता था और इसे रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता था. और इन रिकॉर्ड्स, जो हैंड रिटन रिकॉर्ड्स होते थे, उसको रखने के लिए रिकॉर्ड रूम भी बनाए गए थे जिसमें इन सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस को अटैच किया जाता था. स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स वर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स. बच्चों, जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे आर्काइव्स और म्यूजियम्स हो गए, उनके अंदर भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाता था. विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग, मल्टीपल कॉपीज ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर प्रिंटेड. बच्चों, प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके मल्टीपल कॉपीज़ बनाया जाता था प्रोसीडिंग्स का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसे प्रिंट करके रखा जाता था. व्हेन रीडिंग देम वी अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पावर्स डेल्ट विद ईच अदर एंड हाउ द ब्रिटिश imperialist and economic policies exploited India. Survey reports. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. बच्चों, ब्रिटिश मानते थे कि सबसे पहले कंट्री को अच्छे से जान लिया जाए. पहले मतलब अगर हम वहाँ पर कुछ करने जा रहे हैं तो पहले हम कंट्रीज़ के बारे में बहुत अच्छे से, उस कंट्री के हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जान लेते हैं. सो बाय द अर्ली 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. This information was of great help to the historians. The information gained by census helped the government in better administration. और ये जो इन्फॉर्मेशन हिस्टोरियंस के थ्रू आए थे, इन्होंने काफ़ी एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन में अहम भूमिका निभाई थी. इन द विलेजेस, रेवेन्यू सर्वेस वर कंडक्टेड विच गेव इन्फॉर्मेशन अबाउट द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फौना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न. बच्चों, विलेजेस में जो रेवेन्यू सर्वेस होते थे वो कंडक्ट किए जाते थे ताकि इन्फॉर्मेशन मिल सके टोपोग्राफी की, सॉइल क्वालिटी की, फ्लोरा और फौना की, लोकल हिस्ट्रीज की और क्रॉपिंग पैटर्न्स की. फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century, सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 years. 19th century के बाद, उसके एंड से हर 10 साल के बाद ये सेंसस ऑपरेशन किया चलाया जाता था. दीज सर्विस प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल द provinces of India, noting information on castes, religions and occupation. Thus, survey gave facts seen as necessary to know about a region and administer it well. इस सर्वे से पता लगाया जाता था कि पॉपुलेशन क्या है, कौन से लोग किस कास्ट के हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, रिलीजन क्या है. Indigenous records. Invention of the printing press during this period led to the production of a lot of books, both in Indian and foreign languages. These books threw light on the progress made by man in different fields such as medicine, engineering, technology, art, literature, history, mathematics, music, dance and drama. बच्चों, जब प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ तो इस पीरियड में कई सारे बुक्स, बहुत सारे फॉरेन लैंग्वेजेस में ये प्रोडक्शन हुआ था. ये बुक्स जो है वो लाइट डालते थे इंसानों के प्रोग्रेस पर डिफरेंट फील्ड्स में, जैसे कि मेडिसिन में, इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, आर्ट में, लिटरेचर में, हिस्ट्री में, मैथमेटिशियंस में, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, इन सभी चीज़ों में काफ़ी इम्पैक्टफुल था ये. अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स एंड ट्रैवल्स. Newspapers, books, leaflets,
Vernacular press are some other examples of indigenous records. Newspapers provided first-hand accounts of the activities and in different part of colonial country. Some of these papers are still in publication. The British have systematically kept a record of their old editions in their libraries. ब्रिटिश क्या करते थे, अपने लाइब्रेरीज में जितने भी ओल्ड एडिशंस होते थे उनकी कॉपीज को रखते थे प्रिंट करके. While leaders and reformers wrote to spread their ideas, poets and novelists most wrote to express their feelings. The diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities and popular booklets, all of these are local sources of information which helped the historians to study modern India. Knowledge junction. Although modern images of India often show poverty and lack of development, India was the richest country on earth until the time of British invention in the early 17th century. बच्चों, हालांकि जो मॉडर्न इमेजेस हैं इंडिया की वो ज़्यादातर पॉवर्टी में रही है, लैक ऑफ डेवलपमेंट रहा है यहाँ पर, यानी इंडिया को एक गरीब देश के रूप में देखा जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडिया 17th सेंचुरी से पहले, जब तक ब्रिटिश इंडिया में नहीं आए थे, ये एक रिचेस्ट कंट्री थी जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था. आपने काफ़ी बार सुना भी होगा इसके बारे में. रिसर्च जंक्शन. If a historian cannot find written primary sources, what other sources can he or she look for? What about buildings, archaeological finds, artwork or craft tools? What do these types of objects tell us about the past? What do they leave out? बच्चों, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आते हैं grasp and gain पर. The published accounts of European travelers show that India had flourishing industrial centers in the 17th and the early part of the 18th century. Traders from various parts of the world exchanged their gold, silver and precious stones with cotton textile, salt, paper, tobacco, indigo and silk brocade. Indian spices such as peppercorns, cloves and nutmeg were extremely valuable as wealthy Europeans used them to cook elaborately flavored dishes as well as to preserve food. बच्चों, जो यूरोपियंस थे वो हमारे स्पाइसेस को, यानी इंडिया में बहुत सारी चीज़ों को उगाया जाता है, इसे किसानों का या खेती बाड़ी का देश भी कहा जाता है, आप जानते होंगे. और इंडिया में कई सारे प्रकार के जो स्पाइसेस होते हैं उसे उगाया जाता था. यूरोपियंस इन स्पाइसेस को देखकर काफ़ी प्रभावित हुए और उसके बाद में उन्होंने ट्रेड करना यहाँ पर शुरू कर दिया था. Other sources. Historical buildings. Some buildings such as the India Gate, Gateway of India, Rashtrapati Bhavan, the Parliament House, Red Fort, the Birla House, etc. have many stories and episodes linked to them. These buildings are scattered along the length and breadth of the country. All these buildings are our national wealth and must be preserved. बच्चों, कुछ बिल्डिंग्स जैसे इंडिया गेट है, गेटवे ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है, रेड फोर्ट, बिरला हाउस और कई सारे, ये सारी बिल्डिंग्स की अपनी एक स्टोरीज है. ये हर एक एपिसोड से लिंक्ड है, इनकी खुद की एक स्टोरीज है और ये हमारे जो नेशनल वेल्थ इसे माना जाता है हमारे देश का, इसीलिए इसे प्रिजर्व करके रखना बहुत ज़रूरी है. आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं अदर वर्क्स ऑफ आर्ट पर. वेरियस स्टैचूज एंड रेयर स्पेसिमेंट्स ऑफ paintings not only serve as important works of arts but also tell us about the physical features of the great historical buildings and achievements of the national leaders of India. Miscellaneous sources. Some other sources like letters written by great historical personalities like Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru also gave us a chance to understand their personalities, their way of thinking and their relationship with people. Discovery of India, written by Jawaharlal Nehru, is one such example which describes India across various ages. बच्चों, कुछ sources जैसे letters हो गए या historical जो personalities हैं जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने हमें इंडिया को समझने की और उनकी पर्सनालिटीज़ को समझने का भी एक मौका दिया. कैसे उनकी थिंकिंग को, उनके रिलेशनशिप जो लोगों के साथ में थे उनको समझने का मौका दिया उनकी बुक के द्वारा, जो कि है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी. एक एग्जाम्पल है जिसमें उन्होंने इंडिया को उस एजेस में पूरा डिस्क्राइब किया है. इट इज़ अ कॉम्पिलेशन ऑफ लेटर्स बाय विच पंडित नेहरू टू हिज डॉटर इंदिरा प्रियदर्शिनी, ही रोट दीज व्हेन ही वाज इन जेल. और एक लेटर भी है जो कि पंडित नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा प्रियदर्शिनी के लिए लिखा था जब वो जेल में थे. Terms to learn. Periodization. Organizing history into periods. Rajputs, Indian warrior castes, Mughal Empire,
Historical Indian Empire, survey reports, detailed graphical data, East India Company, British Trading Corporation, census, official population count, disputes, authoritarian rulers, vernacular press, local language in the media, theocratic religious based government, Indian Gate, war memorial in Delhi, colonial rule, domination by foreign powers, discovery of India, a book by Nehru, Marathas, regional Indian power. बच्चों अब आ जाते हैं लेट्स recapitulate पर. The Mughal Empire, centered in the Ganges river basin, initially welcomed European traders for their money. As the Mughal Empire weakened in the early 18th century, the East India Company's influence grew. Historians shifted focus post-World War I from the elite events to social changes affecting ordinary people. James Mill devised historical categories. Hindu, Muslim, British were rejected by Indian historians for oversimplifying history. Indian historians instead use ancient, medieval and modern to categorize period reflecting societal transitions. The modern period in India began in 18th century after Mughal Emperor Aurangzeb's death. European nations competed for trade supremacy in India, leading to the establishment of multiple choice colonies. By the late 18th century, the British had outstated other European powers, establishing dominant control. British rule exploited India economically, impacting agriculture and industries severely, while introducing Western education. Historical studies of this era rely on administrative records, surveys, indigenous records and architectural structures. बच्चों अब आ जाते हैं असेसमेंट जंक्शन पर. बच्चों आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा.